Okay, so we are going to start with templates. So, because for reaching on to the definition of templates, first tell me what is function overloading. Anyone? Let us check how good you are at oops. Sir, when we have a different number of arguments with the same name, Okay. uh, Anybody else? the functions which are made up of same names again and again with a different number of arguments is known as function. Okay. Okay. Anybody else? Sir, a function having same name but different arguments is Okay. called. Anybody else? Anybody else? What is function overloading? Same function with different arguments. And before chalo, this question, tell me which compiler you are using for C++. Turbo? Sir, GCC. Sir, GCC. Go for GCC. Don't use Turbo. Yes, sir. Okay? Because you will suffer a lot when you will be attempting your placement papers. So only use GCC for implementation. सर आज एक बारी GCC इंस्टॉल करना सिखा दो सर. ओके ओके उसका भी हमने एक सेशन प्लान किया है. यस सर. तो उसमें GCC का प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि GCC में कैसे कैसे कोड करना है. ओके. यस सर. Okay, so coming back to our question, function overloading. Anybody else? Sir, a function with same name and different arguments. Having different arguments. Okay, okay. Let us accept your definition. We can say multiple functions with same name but different set of arguments. Yes, sir. Maybe different number of arguments or different type of arguments. Yes, sir. But tell me, functional overloading is a type of. Huh? Function overloading is a type of. Polymorphism. You don't know this? Yes, sir. It is a, see, polymorphism basically is of two types: compile time and run time. Compile time is further of two types: function overloading and operator overloading, right? And runtime polymorphism is called virtual functions. These are the all types of polymorphism. What do you mean by polymorphism? Poly means many and morphism means forms. एक ही चीज के एक से ज्यादा फॉर्म्स होना, इसको हम क्या कहते हैं? Polymorphism. Polymorphism. Yes, sir. Right? Is it clear now? Yes, sir. तो इसके दो टाइप्स हैं. We can perform compile time polymorphism, we can perform runtime polymorphism. Compile time means static basically, and runtime basically means dynamic. Function overloading, operator overloading are type of compile time polymorphism, and virtual function are basically a type of runtime polymorphism. Is it clear now? Template की definition में पहले पहुंचना है. What is the need of template? Why we need template? Okay. So function overloading, multiple function with same name. Like suppose you say add 3, 4. So we have two arguments. Add 3, 4, 6. तो एक ही चीज के एक से ज्यादा फॉर्म्स हुए. Add function की दो फॉर्म्स हैं, multiple forms. Yes, sir. Right? Yes, sir. Tell me the function of operator overloading. Why we need it? Anybody? Anybody? No idea? Okay, let us take one example. Let us take yes, yes. Somebody saying something. To create a new operator in a class. To create a new operator in, actually, see, I'm finding some ambiguities in your definitions. See, let us reach on to definition. Int A is 10, B is 20. Can I do A plus B? Can I do this?
Yes, sir. Yes, we can do this. Yes, sir. But suppose a student class is there and I have 3 objects. Can I do this? Add 2 objects and assign the value to the third object? No, sir. We cannot do it. But with the help of operator overloading, yes, we can do it. Because plus operator only knows how to add 2 integers, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But plus operator doesn't know how to add 2 objects. प्लस को नहीं पता है कि 2 ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करेंगे. उसको ये पता है 2 इंट कैसे ऐड होंगे, 2 फ्लोट कैसे ऐड होंगे, बट उसको ये नहीं पता कि 2 ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होंगे. बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो ये जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट्स. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इनको हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते बिकॉज मुझे नहीं पता क्लास में कौन से वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, कौन से वेरिएबल हैं, तो उनको ऐड कैसे करेंगे. कंपाइलर डज नॉट नो हाउ टू ऐड 2 ऑब्जेक्ट्स. बट फॉर दिस I have to overload plus operator. I have to write a function for it. Void operator plus. And here I will tell how 2 objects have to be added. अब plus के 2 मीनिंग हो गए, एक int से ऐड करना और एक ऑब्जेक्ट से ऐड करना. तो प्लस की मल्टीपल फॉर्म्स हो गई. Yes, sir. So hence called. ये क्लियर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज बेसिकली assigning a new meaning to an existing operator. Please wait. Please wait. Is it clear now? Please, everyone. Operator sir. overloading is basically because प्लस को पहले ही पता था 2 इंट कैसे ऐड करेंगे, बट प्लस को ये नहीं पता था 2 ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे. तो मैं प्लस को बताऊंगा कि 2 ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे. वो कैसे करूंगा? एक प्लस के लिए फंक्शन डिफाइन करके. ये है बेसिकली ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमें उसका एक फंक्शन लिखना पड़ता है जिसमें ये बताएंगे प्लस ऐड कैसे करेगा 2 ऑब्जेक्ट्स को. अब प्लस के 2 मीनिंग हो गए, एक इंटीजर्स नॉर्मल बेसिक डेटा टाइप को ऐड करना और दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ऐड करना. तो प्लस के मल्टीपल फॉर्म्स, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉलीमॉर्फिज्म. Yes, ये sir. चीज क्लियर है या नहीं? Clear, sir. Yes. आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस का नेचुरल मीनिंग है, माइनस नेचुरल मीनिंग इज टू सबट्रैक्ट, बट माइनस से मैं कुछ भी करा सकता हूं उसको ओवरलोड करके. इज इट क्लियर? तो उसके इसमें Yes, sir. माइनस के मल्टीपल मीनिंग हो जाएंगे, एक सबट्रैक्ट करना और एक जो मैंने डिफाइन किया. दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉलीमॉर्फिज्म. इज इट क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, आप sir. मुझे ये बताइए, ओवरलोडिंग आप लोगों ने पढ़ा है, ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? आप सबके साथ लाइव स्टूडेंट के हमारे पास लाइव स्टूडेंट भी बैठा है यहाँ पे, आज कॉलेज आके क्लास लगा रहा है. ओके, लेट अस सी दैट प्रॉब्लम. एक कोड लिखते हैं छोटा सा, void main. तो I take int a is 10 and b is 20 and I write cout add a comma b. तो add को मैंने 2 int के लिए कॉल किया, right? Similarly I say float x is equal to 2.5, y is equal to 3.6, cout add. आपको ये क्लियर है कि फंक्शन को cout कब लगाते हैं? जो सब रिटर्निंग टाइप ऑफ जब Sir, जब उसका return. Yes, sir. एग्जैक्टली जब वो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करे. एग्जैक्टली, वेरी राइट. तो 2 पहले इंट के लिए ऐड कॉल किया, 2 फ्लोट के लिए ऐड किया, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया. Yes, sir. Now let us write its code. So I will write a code, int add int m comma int n return
m plus n. Similarly, float add float I comma float j, return I plus j. ये कोड बिल्कुल सही है. आप 10 20 वैल्यू देंगे, 10 20 वैल्यू Yes, sir. ए बी में जाए, mn में जाएगी, 10 plus 20 30 रिटर्न होगा, सी आउट हो जाएगा. फिर x और y की फ्लोट वैल्यू फ्लोट वाले में जाएगी, ऐड होगा, रिटर्न होके यहां वैल्यू आएगी, वो सी आउट हो जाएगा. ये लॉजिक क्लियर है या नहीं? ये कोड क्लियर है? बड़ा छोटा सा कोड मैंने लिखा फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए, Yes, sir. but it is suffering from a problem. What is that Yes. problem? Sir, हमें हाँ, yes, yes. बार-बार types हाँ, करनी पड़ी. बार बार हर This टाइप के लिए मुझे कोड करना पड़ेगा. int के लिए अलग कोड करना पड़ा, फ्लोट के लिए अलग कोड करना पड़ा. सपोज आई राइट फॉर int float, उसके लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा. फ्लोट के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा. फ्लोट कैर के लिए अलग लिखना पड़ेगा. कैर फ्लोट के लिए अलग लिखना पड़ेगा. कैर कैर के लिए अलग लिखना पड़ेगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the problem function overloading is suffering from, and its solution is templates. Okay? Yes. Yes, Up- sir. यहाँ. Okay. See the second line. The overloaded function are distinguished by the means of different parameter less than function overloading. It may be possible the implementation of different function are identical except for the data. Yes or no? So we have to define a separate function for each data type. See this line. We have to define a separate function. हमें बार-बार लिखना पड़ता है. Yes or no? Yes, sir. तो its better solution is templates. अब ये क्लियर है टेम्पलेट की Yes. जरूरत क्यों पड़ी? Yes, sir. क्योंकि मुझे बार बार कोड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ये जैसे मैंने कोड लिखा उसने भी ये कोड लिखा है फंक्शन ओवरलोडिंग का. तो उसने इंटेंट के लिए अलग लिखा, फ्लोट के लिए अलग लिखा, कैर कैर के लिए अलग लिखा. पर इसका सोल्यूशन क्या है? फंक्शन टेम्पलेट्स. पहला टेम्पलेट्स. एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट वी हैव डन टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ उसके बाद हाउ वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन. हमें डिफाइन करना पड़ता है टेम्पलेट, क्लास, कुछ भी क्लास का नाम रख सकते हैं, एंड उसी को आगे यूज करेंगे. जैसे आप देखिए, अगर मैं क्लास इंट के लिए डिफाइन करूं तो टी इंट बन जाता है, और फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंट बन जाती है, और उसके आर्गुमेंट भी इंट बन जाते हैं, क्योंकि टी की टाइप इंट है. आप देखिए इसका छोटा सा कोड आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा कोड है, टेम्पलेट के लिए लिखा है मैंने. आप देखिए मेन से स्टार्ट करिए. तो आई हैव टेकन टू वेरिएबल x एंड y. आई हैव सीन द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड min फंक्शन कॉल कर लिया x और y के लिए. पर x और y की टाइप क्या थी? इंट. तो देखिए ऊपर टेम्पलेट डिफाइन किया है, क्लास टेम्पलेट क्लास टी. तो टी का टाइप क्या बन जाएगा? इंट. इंट. Yes. और ऊपर नीचे एक फंक्शन डिफाइन किया है टेम्पलेट के साथ. min की रिटर्न टाइप भी इंट होगी, और a और b दो आर्गुमेंट होंगे, उनकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी? इंट. तो जिस तरह के आप आर्गुमेंट पास करेंगे उस तरह का ही वो फंक्शन बन जाएगा. अब देखिए ये चलेगा. उसके बाद फ्लोट के लिए चलाया, फ्लोट पी क्यू इन किया, और min कॉल किया p और q के लिए. p और q क्या है यहाँ पे? फ्लोट. तो जो p और q a और b को पास होंगे तो t की टाइप क्या बन जाएगी? फ्लोट. तो आपको अलग अलग कोड नहीं करना पड़ रहा है. Yes, sir. इसी तरह कैरेक्टर के लिए किया उसने, कैर c1 c2 सीन किया, min को पास किया, और c1 c2 की टाइप कैर है, तो t की टाइप क्या बन जाएगी? कैर. तो आपको अलग अलग कोड नहीं करना पड़ रहा है. Yes, sir. एडवांटेज क्लियर हुआ टेम्पलेट का? ये नोट्स मैं आपको Yes, ऑलरेडी sir. शेयर कर चुका हूं आपके ग्रुप में. इफ यू सी, ये पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं टेम्पलेट्स का आपके ग्रुप में, डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्रुप में. इज दिस प्रोग्राम क्लियर? Yes, sir. Yes, इज दिस sir. इजी? Yes, sir. Yes. ओके. बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ए और बी की टाइप सेम ही रहेगी, Yes, sir. क्योंकि दोनों की टाइप टी है. Yes. तो इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा मोर देन वन जेनेरिक टाइप. आप देख रहे हैं फंक्शन टेम्पलेट विद मोर देन वन जेनेरिक टाइप. अब देखिए ये कोड थोड़ा अलग है. अब आप देखिए टेम्पलेट जो डिफाइन किया है उसमें दो क्लासेस हैं एक की बजाय, T1 और T2, क्योंकि मैं दो अलग अलग डेटा टाइप लेने वाला हूं. अब ध्यान दीजिए, मेन में आइए. int i is 10 and float f is 25.5. तो एक आर्गुमेंट int है और दूसरा कौन सा है? फ्लोट. तो डिस्प्ले को जब मैं i और f पास करूंगा, i जाएगा ऊपर और a की टाइप बन जाएगी
इंट, int, और f जाएगा b में, उसकी टाइप क्या बन जाएगी? float. फ्लोट। तो अब ये सेम डेटा टाइप की नहीं, अलग अलग, अब ये int फ्लोट के लिए भी काम करेगा, फ्लोट int के लिए भी काम करेगा, कैर फ्लोट के लिए भी काम करेगा, फ्लोट कैर के भी काम करेगा, राइट? नीचे देखिए Yes, sir. इसने क्या किया है, कैर लिया है कैरेक्टर b और i एक 20 लिया है इंट सपोज। अब ये कैर इंट के लिए चल रहा है, तो ऊपर a की टाइप कैर बन जाएगी और b की टाइप इंट बन जाएगी। Yes, sir. तो ये मल्टीपल डेटा टाइप के लिए अगर आप टेम्पलेट चलाना चाहते हो, इज इट इजी? Yes, sir. इसमें आपको एक क्लास की बजाय दो, अगर 3 लेने हैं तो 3 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। Yes, sir. ओके, सेम है, अगर तो दोनों के आर्गुमेंट्स, दोनों की टाइप सेम है, तो आपने देखा मैंने एक ही लिया, ए का टाइप टी, बी का टाइप टी, तो अगर ए इंट होगा तो बी भी इंट होगा। पर इसमें मैंने ए की बजाय आई हैव टेकन 2 क्लासेस, क्लास T1 क्लास T2, तो ये अलग अलग के लिए T1 की टाइप कुछ भी हो सकती है, पर इसमें प्रॉब्लम अगेन यही रहेगी कि 2 ही आर्गुमेंट दे सकते हैं, और 2 आर्गुमेंट की टाइप कोई भी हो सकती है, इंट फ्लोट, फ्लोट इंट, इंट कैर, कैर इंट, फ्लोट कैर, कैर फ्लोट, राइट? Yes, sir. इज इट इजी नाउ? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. नाउ ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट, ये एक अगला प्रोग्राम, फंक्शन ओवरलोड, टेम्पलेट की फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मेरे पास 2 टेम्पलेट है, मिन एक ऊपर यहां पे और एक नीचे, पर डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में, राइट? तो अगर मैं मेन में देखिए मिन ऑफ 10 20, अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट के लिए कॉल करूंगा तो ये वाला टेम्पलेट चलेगा, और अगर मैं 3 के लिए चलाऊंगा तो ये वाला चलेगा। बट इन दोनों में भी एक प्रॉब्लम है कि सेम ही टाइप जाएगी, क्योंकि एक ही टेम्पलेट लिया मैंने, एक ही क्लास ली, तो 2 टेम्पलेट विद सेम नेम, हेंस कॉल्ड टेम्पलेट ओवरलोडिंग। इज इट Yes, इजी? Yes, sir. Yes, sir. Please, any doubts in this program? Any doubts in this program? No, Everyone, No, sir. is it clear? Should I move? Yes, sir. So what we saw first why, what is template, why we need template, then we saw a template program with sir. similar data types. Yes, some question is there. Sir, some students are outside waiting. लेट आएंगे तो फिर कैसे होगा भाई, पर यहाँ कोई नहीं है वेटिंग में। सर वो मीटिंग लॉक है मेरे हिसाब से, इसलिए। ओके ओके, Mitali is there. Anybody else? Mohammad Arish. सर काफी बच्चे हैं। Sir, Harpreet Kaur is also waiting. लेट मोहम्मद आएंगे आरिश, तो फिर कैसे सलमान, है हरप्रीत। ना? सिमरन, अर्पित। चलिए, is this program clear now? Yes, Everyone? Yes, sir. यस सर। So we saw what are templates, why we need template, then a template program with similar data type, then with generic different data types, then template overloading. And the last topic of this template unit is, इसमें 4 ही programs हैं, class template. तो class template करने का एक फायदा ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता पुश पॉप का प्रोग्राम है स्टैक के लिए। तो आप देखिए इसने एक क्लास बनाई है, क्लास स्टैक, और उसमें एक एरे लिया है, एरे की टाइप टी है क्योंकि टेम्पलेट लेंगे इसलिए, ऊपर क्लास टेम्पलेट टी लिया हुआ है, एक मैक्स वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 है, और एक स्टैक का स्टैक कंस्ट्रक्टर है, और पुश फंक्शन है टू ऐड आइटम टू द स्टैक, एंड पॉप इज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, राइट? अब आप देखिए, तो क्लास मैंने लिया है टेम्पलेट क्लास टी, तो स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, स्टैक का ऑब्जेक्ट S1 बनाने से पहले मैंने उसकी टाइप दे दी। क्या टाइप दी है? Int. इंट। इंट, तो इस टेम्पलेट की टाइप क्या बन जाएगी?
int, इंट एरे की टाइप क्या बन जाएगी? int, इंट Integer. और आइटम की टाइप भी क्या बन जाएगी? Int. इंट और आगे वही लॉजिक लगा, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 स्टैक फुल है ओवरफ्लो, अदरवाइज टॉप को इंक्रीमेंट करके टॉप में आइटम डाल देंगे, सिंपल। यस और नो? सिमिलरली पॉप की टाइप क्या है? टी, तो टी की टाइप क्या बन जाएगी? क्योंकि हमने नीचे क्या पास किया था? इंट। अगर टॉप -1 है तो स्टैक खाली है, अंडरफ्लो, अदरवाइज टॉप से आइटम निकालेंगे और टॉप माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली देखिए 10 और 20, इसी तरह स्टैक का S2 ऑब्जेक्ट बनाया और क्या टाइप दी? फ्लोट, तो एरे की टाइप क्या बन जाएगी? प्लीज रिस्पॉन्ड। float, फ्लोट। Float, sir. एंड आइटम की टाइप क्या बन जाएगी? float. फ्लोट। तो Float. आपको अलग अलग क्लासेस बना के अलग अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है, एक टेम्पलेट बनाइए और क्लास में यूज कर लीजिए, किसी भी तरह का डेटा पास करिए। इज इट इजी Yes, sir. एवरीवन? इज टेम्पलेट यूनिट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट्स प्लीज? और शुड वी मूव? प्लीज एवरीवन। Yes, sir. जिस तरह का हम टाइप देंगे उससे, क्योंकि टेम्पलेट ऊपर बना रखा है, तो उसी तरह की क्लास बन जाएगी उसकी। इंट पास करेंगे तो सारे वेरिएबल इंट बन जाएंगे, फ्लोट पास करेंगे तो फ्लोट बन जाएंगे, बाकी तो पुश पॉप का लॉजिक लगा हुआ है जो आपने ऑलरेडी एल्गोरिथम फॉर्म में देखा है, राइट? Yes, sir. शुड वी मूव? Yes, sir. Okay, so this was the template unit. After this template unit we have आज हम मल्टी सब्जेक्ट लेक्चर लेने वाले। तो ये हमारा ऊप्स का पार्ट था जो आज हमने पढ़ा। एक आपका पार्ट है फॉर योर कोलपी सब्जेक्ट। द टॉपिक इज कॉल्ड the topic is called topic name is Virtual memory. virtual Virtual memory. memory. Virtual Yes. memory. You must have heard of RAM memory, ROM memory, then flash memory. Flash memory is type of which memory? An example for flash memory? So pen drive. Pen drives, exactly, pen drives. Virtual memory. Now, what the name suggests, virtual memory? Anyone? What do you mean by virtual? Imagine. Huh? Imagination. Imaginable. Exactly. See, when you play a simulation game, huh? A car racing game or a bike racing game, so Yes, you sir. sometimes you feel like you are actually driving it, but you are not actually driving it. Yes, sir. Yes, Yeah, right? sir. So virtual sir. is something which actually does not exist but appears to be. Yes, sir. Like अगर आप में से कुछ लोग साइंस सिटी गए हैं, कपूरथला जलंधर, तो देयर इज अ सिमुलेटर। तो वो सिमुलेटर में आपको बिठा देते हैं एंड रोलर कोस्टर राइड है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एग्जैक्टली रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, Yes, sir. राइट? Yes, तो sir. Yes. समथिंग व्हिच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट बट अपीयर्स टू बी, but let us this is basically virtual memory. Now, how virtual memory plays its role in computer science? Suppose I have a memory and memory is of size 1 GB and a process is there which is to be executed, a process which is to be executed of size 100 KB, and we all know before executing this process has to be loaded into the memory. Yes or no? जब तक प्रोसेस मेमोरी में लोड ना हो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। Yes, sir. Is it clear everyone? Yes, sir. तो जब तक कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड ना हो, वो
we cannot execute that process because आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा लिंकिंग लोडिंग एग्जीक्यूटिंग. पहले लिंक होता है प्रोग्राम हेडर फाइल के साथ, फिर लोड होता है मेमोरी में एंड फाइनली एग्जीक्यूट्स, राइट? आप कंप्यूटर चलाते हैं तभी आता है विंडोज इज लोडिंग. आप गेम खेलते हैं गेम इज लोडिंग. तो जब तक लोड नहीं होगा प्रोग्राम मेमोरी में तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. नहीं होगा. Yes, sir. तो if you see this example, process is smaller, memory is bigger. Easily program will be loaded into the memory and easily it will be executing. Yes, sir. But suppose process is of size 4 GB and memory is only 1 GB. Can we execute this process? No, sir. Process is 4 GB, memory is small, process is big. You see, if the processes are smaller, they will be easily loading into the memory and executing. But suppose processes are bigger, memory is small. Can we execute this process? ये load ही नहीं हो पाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? And Yes, hence yes, it will not be able to execute. But yes, with the help of virtual memory concept, we can execute this. Yes. Even this is the application. This is the advantage of virtual memory. That yes, if your programs are bigger than your memory, if program size is bigger than the memory, still we can execute this process. Okay? Should we see how? Yes, sir. So we will do what? इस 4 GB के प्रोसेस को मैं 1 GB के 4 पार्ट में तोड़ लूंगा. Yes, sir. Then first GB लोड करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा. Then second GB लोड करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा. थर्ड GB लोड करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा. 4 GB लोड करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा. तो मेरा 4 GB का प्रोसेस 1 GB के मेमोरी में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So this will give me a feeling like I have a 4 GB memory क्योंकि मैंने 4 GB का प्रोसेस चलाया. But actually 4 GB memory does not exist. Yes, sir. That is why we call it Virtual memory. virtual memory. We feel like we have a bigger memory at our end, which actually does not exist. And with the help of virtual memory, we can execute bigger processes even if we have smaller memory. Smaller memory. Yes. Concept is clear? Yes, sir. What is virtual memory? It is clear. Yes, sir. Now, let us see how virtual memory works. Should I erase this? Should I erase? Yes, sir. Okay. So virtual memory is implemented with the concept of a topic called paging. Virtual memory is implemented with the help of concept of called paging. Where we do what? This is my memory. This is my memory. And I divide this memory into different portions called frames. And this is my process. And what I will do, I will divide this process into sub processes. जैसे वो 4 GB को 1 GB में कन्वर्ट किया था, called pages. मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड कर दूंगा एंड प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दूंगा and then I will load those pages into my memory frames. This process is called swap in. मेमोरी में लेके आना. And after execution, उन पेजेस को मेमोरी से बाहर निकालना पड़ता है, called swap out. तो पहले पेजेस स्वैप इन होंगे, एग्जीक्यूशन के बाद स्वैप आउट होंगे, नए पेजेस स्वैप इन होंगे, एग्जीक्यूट होंगे. तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. लॉजिक इज क्लियर? Everyone? Yes, sir. Memory is Yes, divided sir. into frames. Process is because full process cannot be loaded. तो मैं इसको pages में divide करके load करूंगा. तो pages में divide करूंगा and I will load those pages from a process to memory called swap in process. Swap in करूंगा, execute होंगे, execute होने के बाद swap out. Next page is swap in, execute swap out. Next page is swap in, execute swap out. This will continue till your whole process gets executed. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Paging process is clear? Yes, sir. Now we have another concept of after this paging in virtual memory, we call it
We call it Demand page. demand paging. Demand page. Demand paging. See what we were doing, if you remember, we had the process in the form of pages and memory in the terms of frames. Then we were loading, executing, and loading out. Then again loading in, executing, loading out. But there are some pages. There are some pages which are in demand by the CPU frequently. कहने का मतलब क्या है? ऐसे पेजेस जिसकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है. कभी आपने कंप्यूटर में नोटिस किया है कि आप लाइक व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो एक मोस्ट रीसेंट डॉक्यूमेंट वहां पे बनता है, लिंक. Yes, sir. या Yes, sir. जिन डॉक्यूमेंट को आप बार बार एक्सेस करते हैं उनका लिंक बन जाता है ताकि आप इजीली उनको एक्सेस कर सको, Yes, sir. ताकि एक्सेस टाइम कम हो सके, आप जल्दी एक्सेस कर सको उसको. तो सिमिलरली द पेजेस व्हिच आर इन डिमांड बाय द सीपीयू फ्रीक्वेंटली, ऐसे पेजेस जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है. नाउ जरूरत पड़ी, यू लोड, दिस इज माय मेमोरी, दिस इज माय प्रोसेस. आपने इन प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड किया और लोड करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकाल दिया. बट आप एक ध्यान दीजिए, उन पेजेस की जरूरत सीपीयू को क्या कर पड़ती है? कुछ पेजेस की जरूरत, सम पेजेस, नॉट ऑल पेजेस, सम पेजेस जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है. तो अगर आप उनको लोड करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद स्वैप आउट कर देंगे, तो अगली बार फिर जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा स्वैपिंग करना पड़ेगा. विल दिस नॉट वेस्ट टाइम? क्योंकि बार बार लोड करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बार बार जरूरत पड़ रही है. Yes, sir. तो व्हाट वी विल डू, वी विल नेवर स्वैप आउट दोस पेजेस जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत, उनको मेमोरी में ही रखेंगे. Yes, sir. So that whenever CPU needed those pages, those are already available in memory, आपको दोबारा स्वैप नहीं करने पड़ेंगे. तो इससे टाइम बचेगा, इससे स्पीड बढ़ेगी, इससे थ्रूपुट बढ़ेगी. What is throughput? What is throughput? Anyone? One of the most important definition of your subject, throughput. Efficiency. No. Of course, it is related to efficiency, but what is throughput? Number of operations per unit time. Yes, sir. अगर ये बढ़ेंगे तो performance of efficiency of course बढ़ेगी. तो throughput is the number of operations per unit time. आप लोगों ने पाइपलाइनिंग यूनिट नहीं पढ़ा क्या? Parallel processing. No, sir. Pipelining. No, sir. तो वहां आप ये देखोगे, throughput is the number of operations per unit time or number of instructions per unit time. Now, is demand paging clear? Yes, sir. The pages which are in demand by the CPU frequently, we will never swap out those pages. We will keep those pages always in the memory, so that whenever CPU needs it, they are readily available in the memory. आपको बार बार swap in नहीं करना पड़ेगा. Sir, memory यहाँ पे RAM है. RAM memory, of course. Yes, sir. Okay. Even हम अपने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं. Sometime a page fault, अगर मेरे कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी लो हो, तो sometime I start getting a problem called page fault. We are going to see soon in the next unit. Is demand paging clear? Yes, sir. Everyone? So demand paging is Yes, sir. used to increase the throughput, increase the efficiency, of course, because मुझे बार बार पेजेस स्वैप इन नहीं करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा. Pages will be always available in the memory. I can take those pages any moment of time. देखिए ना, एक चीज की आपको बार बार घर में जरूरत पड़ती है, तो आप उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां से आप आसानी से उसको फेच कर सकें. Yes or no? या कहीं भी रख देंगे, तो फिर उसको बार बार ढूंढना पड़ेगा उस चीज को. तो अगर वो मेमोरी में ही रहेगा हमेशा, तो मैं कभी भी उसको ले सकता हूं, क्योंकि बार बार सीपीयू को उसको जरूरत पड़ती है. Is it clear? Yes, sir. Now, next in this is, what do you mean by a page fault? What is the concept of a page fault? ये आपके कंप्यूटर में आता है कई बार. अगर virtual memory low, if your computer's virtual memory is low, sometime then we get this error. You must have heard about a blue death screen. देखा है कभी आप लोगों ने? A blue Yes. screen of death. No, sir. आप ये जनरली कंप्यूटर पे कई बार आ जाता है.
इसके बाद आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट ही करना पड़ता है, फोर्स रीस्टार्ट। आप कुछ नहीं कर सकते, ब्लू स्क्रीन आती है एक स्क्रीन पे, एंड कोई हार्डवेयर फॉल्ट आ सकता है, या आपका यू मे बी हैविंग अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट इज व्हाट? सपोज CPU has divided memory into frames as we discussed, process into pages, then we are loading those pages into frames। और जिस पेज की जरूरत है CPU को लोड करने की, अब वो पेज मिसिंग है। अगर वो पेज मिसिंग है तो क्या CPU अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है? नो, उसको पेज चाहिए, क्योंकि पेज कंटिन्यूएशन में है, पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो फर्स्ट पेज लोडेड एग्जीक्यूटेड, थर्ड सेकंड पेज लोडेड एग्जीक्यूटेड, थर्ड पेज लोडेड एग्जीक्यूटेड, बट फोर्थ पेज व्हेन इट इज टू बी लोडेड इट वाज मिसिंग फ्रॉम द पेज टेबल। पेज टेबल में वो पेज था ही नहीं। तो कैन प्रोसेस कंटिन्यू? नो, पेज कैन नॉट कंटिन्यू। तो वी हैव टू, दिस इज पेज फॉल्ट, द पेज Is it clear? The page fault is basically what? The page which was required by the CPU is not found in the page table. Page table में आपको page नहीं मिला. Yes, Then sir. we have to do what? We have to do this. Handling a page fault. How do we handle a page fault? अगर page fault हो जाता है, तो how we do it? So this is my page table where I have information about all the pages. Here we have our OS. Here we have our storage device. And here you have your physical memory called RAM memory. तो ये चार लोग अपना रोल प्ले करते हैं, ये मेमोरी के फ्रेम्स हैं। Now what was happening? This CPU was here, जो पेज टेबल से पेज ले रहा था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, बट यहाँ आके एक पेज फॉल्ट आ गया, क्रॉस, द पेज वाज मिसिंग। नाउ CPU cannot execute this process. What will happen? We will send a interrupt to OS. This interrupt is called trap. Can anybody tell me what is trap? Anybody? What is trap? What is interrupt? It is used for catching and holding things. No. What is interrupt basically? Anybody? Sir, interrupt means कि sir एक काम छोड़ के हम दूसरा काम करने जा। Of course, it is करते a हैं। signal basically. It is a signal basically. As I have given this example in data structure also, suppose you are reading a book at your home and doorbell is there. So this is the interrupt. Now, Yes, sir. आपको बुक पढ़ना है या आपको डोर पे जाके उसको हैंडल करना है, डिपेंड करता है कि इंटरप्ट इज मास्केबल और नॉन मास्केबल। इफ द इंटरप्ट इज मास्केबल, देन यू कैन पॉज योर इंटरप्ट। आप देखेंगे, मैं बाहर में देखूंगा गेट पे कौन है, I will continue my process. But suppose I'm giving this lecture and principal sir enters in the class, I have to pause this lecture. तो ऐसी इंटरप्ट जिसको मैं मास्क नहीं कर पाया, जिसको मुझे पहले हैंडल करना पड़ेगा, अपने काम को छोड़ना पड़ेगा, such interrupts are called NMI, non-maskable interrupt. ऐसी interrupt which I cannot mask, I have to handle that interrupt with the priority. And trap एक highest priority की कौन सी interrupt है? Non-maskable interrupt. तो मुझे सारे काम छोड़ के OS सारे काम छोड़ देगा और इसको देखेगा। Is it clear? What is trap now? Trap is an interrupt of highest priority. Highest priority. And which category? NMI. Non-maskable. Is the difference clear? Maskable interrupt and non-maskable interrupt. Yes, sir. Maskable जिसको मास्क कर सकते हैं, that means I can continue my own task. Non-maskable में मैं मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा with priority. And trap is the interrupt of highest priority, जिसकी priority सबसे ज्यादा है. Now what will happen? Trap will go to OS की page fault हुआ है, यहां वो पेज पड़ा है मेरी auxiliary memory के अंदर, एंड वो पेज फॉल्ट जिसकी वजह से पेज फॉल्ट आया है उसको हम कहते हैं विक्टिम पेज। ओएस क्या करेगा? उस पेज को सर्च करेगा ऑक्सिलरी मेमोरी से, सर्च करने के बाद
उस पेज को फ्री फ्रेम में लोड कर देगा रैम मेमोरी में, और रैम मेमोरी से हम पेज टेबल को अपडेट करेंगे कि वो पेज जो गुम गया था वो पेज अब मिल गया है, एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू योर प्रोसेसिंग. Is this clear how the page fault is handled? Yes, sir. Is it easy? तो इसको आप Yes, स्टेप sir. फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको आप स्टेप फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप, interrupt occurred. Sorry, page fault occurred. First, second step, send a trap interrupt to OS. Third step, OS search the victim page from the auxiliary memory. Victim page is that page for which the page fault has occurred. इसकी वजह से पेज फॉल्ट आया था, ये नहीं मिल रहा था पेज, तो यहाँ तो है ही मेरे पास. तो आई विल टेक दैट पेज एंड लोड इनटू द फ्री फ्रेम. फ्री फ्रेम मतलब जो खाली होगा वर्चुअल में, फिजिकल मेमोरी. तो आफ्टर दैट लोडिंग इनटू द, आई हैव टू अपडेट द पेज टेबल that page is now available and CPU can continue its execution. Is it clear now? Yes, sir. Should I erase this? Yes, sir. Okay. Now next under this we have is page replacement algorithms. Page replacement algorithms. What is this and why we need it? Before that, I must tell you there are three type of page replacement algorithm. First is FIFO. Okay. Second is LRU. And third is there are three algorithms for it: FIFO, LRU, and optimal page replacement. But what is page replacement basically? Suppose you have a physical your page table. There are some pages 1, 2, 3, 4, 5 in this page table. अब नया पेज अगर आपको मेमोरी में लाना है तो पहले किसी पेज को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वहां जगह बनेगी और आप पेज लोड कर पाओगे. Yes or no? Yes, sir. So page replacement algorithm is a strategy which decides if I need to load a new page into this memory, I have to get some page replaced. I have to take some page out. तभी वहां जगह बनेगी and I will be able to load a new page. Is it clear? Yes, sir. So this is basically called a page replacement. Now let us see with example FIFO, LRU, and optimal. I will do one example for each and then we will see. Suppose this is the memory. I have 4 slots into it and pages are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose this is it. And I'm talking about FIFO. FIFO is first in, first out. First out. So I loaded 1, I loaded 2, I loaded 3, I loaded 4. Now I need to load 5. So which page I have to take out? 1, because 1 was first in. 1 पहले आया था. उसके बाद 6 लोड करना है तो कहां लोड करूंगा? First in, first out. Sir. Is it clear? Yes, sir. Everyone? Everyone please respond. Yes, sir. FIFO is clear? Now let us see LRU. LRU full name is least recently used. Least recently used. So 1, 2, 3, and 4. Let us make some page order. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, suppose this is a page sequence. So suppose I say 5, then 1, 2, 3, 4 लोड कर देंगे सबसे पहले.
मेमोरी फुल करना है, एंड देन आई हैव 5। तो अब ध्यान दीजिए, 5 मुझे लोड करना है, तो मैं किसको निकालूं? लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे पहले यूज हुआ था। कौन यूज हुआ था सबसे पहले? 1। आप बोलोगे ये तो फीफो की तरह ही है, बट नहीं, ये फीफो से डिफरेंट है। सपोज 1 यहाँ दोबारा यूज होता है, या यहाँ पे आप कुछ भी लोड करते हैं, 1 2 3 1 एंड सपोज 5। अगर ये होता तो यहाँ ऐसा होता 1 2 3 4 1 5। अब 1 2 3 4 आपने लोड कर दिया, नेक्स्ट पेज क्या है? 1. 1। तो 1 तो ऑलरेडी मेमोरी में है, उसको दोबारा तो नहीं लोड करेंगे। Yes or no? Yes, sir. But now I have to load 5. तो 5 को किसकी जगह रिप्लेस करूं? 4 अभी अभी यूज हुआ, 3 अभी अभी यूज हुआ, 1 दोबारा यूज हुआ, इसके लिए मैं किसको रिप्लेस करूंगा? क्योंकि 2 एक ऐसा पेज है जो सबसे पहले यूज हुआ था। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, नाम से पता चल रहा है। इज दिस एग्जांपल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए 1 2 3 4 मैंने कर दिया, 1 दोबारा यूज हुआ, अदरवाइज मैं 1 को निकालता, पर 1 अभी अभी यूज हुआ, इसलिए इनमें से सबसे पुराना पेज कौन सा है जो सबसे पहले यूज हुआ था? 2, इसलिए मैं 2 को रिप्लेस करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Should we move? Okay, so we are left with the last, that is called optimal page replacement. Optimal page replacement says, suppose I have again an example 1 2 3 4. So I have 1 2 3 4 5 3 2 1. Suppose this is a sequence. So I will load 1 2 3 4. अब मुझे क्या लोड करना है? 5. 5। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में मैं आने वाला सीक्वेंस देखूंगा। आने वाले टाइम में 3 भी यूज होगा, 2 भी यूज होगा, 1 भी यूज होगा, 4 यूज नहीं होगा, तो मैं 4 को निकाल दूंगा, क्योंकि 4 की जरूरत ही नहीं आने वाले टाइम में। या ऐसा है 4 की जरूरत सबसे बाद पड़ेगी, तो इसलिए मैं 4 को निकाल दूंगा। इज इट क्लियर Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So this is the 3 with example, the page replacement. So virtual memory is a full concept. Virtual memory is what? Why we need virtual memory? We need virtual memory because we have to execute bigger processes. Even if we have smaller memory, then we explain the concept of paging, demand paging, page fault, handling a page fault, and finally the page replacement algorithms. Right? Should I erase? Should I erase? Yes, sir. Yes, sir. So we are left with one more concept in virtual memory. That concept is called, वैसे ये definition ही है, but we must know it. This concept is called thrashing. Now, what is thrashing? एंड सी, आप लोगों को वर्चुअल मेमोरी पढ़ाने के लिए मैं वर्चुअल मेमोरी पढ़ के नहीं आया, ये मैंने अपना बीटेक में जो पढ़ा आपको वही पढ़ा रहा हूँ। तो ये सिचुएशन आप लोगों का होना चाहिए कि अ टॉपिक शुड बी एवर रेडी फॉर यू। आप लोग क्यों भूल जाते हैं चीजें? थ्रैशिंग। नाउ टेल मी बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कांसेप्ट, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? Now our CPU executing one process, suppose then I give 2 processes to it, 3 processes to it, 4 5 processes to it, 10 20 100 processes to it. So I'm increasing the number of programs to be done by the same CPU. Yes or no? आप अपने कंप्यूटर पे वर्ड भी खोलते हैं, साथ में सॉन्ग्स भी चलाते हैं, या साथ में कुछ और पीछे पेन ड्राइव में कॉपी भी हो रहा है। Yes, So this is sir. multi programming, right? Yes, sir. Multiple programs Yes, are sir. executing at the same time. Now if you increase the degree of multi programming, तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा? ज्यादा CPU यूज होगा? Yes, sir.
अब बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब सीपीयू परफॉर्मेंस नीचे गिर जाएगी। एक पॉइंट के बाद if you increase degree of multi programming CPU utilization falls. Why? हैंग होना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. इसका एग्जैक्ट लॉजिक है, आपने वर्चुअल मेमोरी अभी पढ़ा। तो हम पेजिंग करते हैं, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं, राइट? Yes, sir. or no? Yes, sir. So when there will be multi-programming, multiple program will be executing at the same time, what will happen? CPU हमेशा क्या करता रहेगा? Page बनाएंगे. और पेजिंग बनाने के बाद एग्जीक्यूशन करने का बारी ही नहीं आएगा। वो इतना उसके पास काम हो जाएगा कि वो सिर्फ पेजिंग ही करता रह जाएगा, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद पेजिंग का इतना लोड हो जाएगा, प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं आप, उसको हर प्रोग्राम की पेजिंग करनी पड़ रही है। तो एक टाइम आएगा when CPU will be only busy in paging and will never execute. तो उसके बाद CPU performance जो है it will fall down. This concept is called thrashing. Is it clear? Yes, sir. Should I raise? Yes, sir. Okay. Now, तो ये था आपका कोल का वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कुछ लोगों ने आप में से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यू वांट टू डू, अभी भी 6 लोग वेट कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं भाई? ओके, फ्लिप फ्लॉप यूनिट ऑफ DCLD करना चाहते हैं? Yes, sir. Okay. Are you able to view my screen? Yes, sir. Yes. तो ये बुक आपके साथ मैंने शेयर किया था, अगर आपको याद हो, PDF, राइट? Yes, sir. चलिए फ्लिप फ्लॉप यूनिट देखते हैं क्या कहता है। हाँ, आ गया फ्लिप फ्लॉप। Are you able to view this? Right? Everyone? Yes, sir. Okay, tell me Yes, the sir. difference between combination circuit and sequential circuit. Anyone? हाँ जी, please. Anyone? Combination circuit and sequential circuit? Any difference? Sir, in combinational circuit, we don't need to preserve the output for further use. Exactly, exactly. But in sequential, we need to preserve the output for the बिल्कुल, further बिल्कुल। use. देखिए देखिए, कॉम्बिनेशन सर्किट में ऐसा होता है, कॉम्बिनेशन में यू गेट द इनपुट, यू गेट द आउटपुट, राइट? Yes? Yes, Everyone? sir. If you give the input, you will get the output for it. Yes, sir. But in sequential circuit, we have an extra unit called a memory, where your output will not depend upon input only, it will depend upon the previous output also. आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा है ये डायग्राम। कॉम्बिनेशन के साथ मेमोरी जुड़ा हुआ है, इस मेमोरी में मेरा प्रीवियस रिजल्ट है, वो प्रीवियस रिजल्ट भी इनपुट पे जाएगा और इनपुट जाएगी तो मेरी आउटपुट आएगी। Yes or no? Yes, sir. Now, I hope you know the purpose of flip-flop. Flip-flop is a memory element basically. And one flip-flop can store how many values? One flip-flop. 1 bit. 1 bit, exactly. So if I say I have a 4-bit register, so how many flip-flop I will have? 4 flip-flop. 4 flip-flops, right? Exactly. But there is another version of flip-flop called latch, and there is a latch, there is a flip-flop. What is the difference between the two? Latches are basically unclocked. Latch में clock signal नहीं होता, but flip-flop are always clocked. Now, what is a clock signal? Clock signal is basically a frequency like this, where this unit is called 1 clock cycle. You can repeat it, another clock cycle, another clock cycle, right? The clock signal are basically providing the frequency to a device.
नाउ इफ वी सी दिस, तो फ्लिप फ्लॉप हम पहले बात कर चुके हैं। पहला फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस का फुल नेम है रीसेट सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो ये Yes, इसका एक सर्किट डायग्राम है, साइड में लेफ्ट में और राइट में आप देख रहे हैं इसको गेट से इंप्लीमेंट किया है, देख रहे हैं आप? Yes, sir. अब इसमें ये है कि ये सर्किट डायग्राम तो आपको जरूरत नहीं होती है ट्रांजिस्टर्स एंड रेजिस्टर्स वाला, आपको ये डायग्राम बनाना होता है राइट वाला। देख रहे हैं स्क्रीन पे गेट से बना है, ऊपर नैंड से बना है, नीचे और से बना हुआ है। Yes, sir. तो इसको आप किसी भी गेट से बना सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए, एस एंड आर आर योर इनपुट्स, ओनली इनपुट्स विल नॉट डिसाइड योर आउटपुट, बट प्रीवियस आउटपुट विल आल्सो डिसाइड, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट दोबारा इनपुट पे जा रही है। सीक्वेंशियल सर्किट, यस और नो? Yes, sir. और इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो कुछ ऐसे होगा, एस इनपुट होगा, आर इनपुट होगा, एंड क्यू बार विल बी टू आउटपुट्स विच विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर Q1 होगा तो Q बार 0 होगा, ये तो हम जानते ही हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहां पे ये है इसका फ्लो चार्ट कि अगर आप R को 0 देंगे, S को 0 देंगे, तो क्या होगा? लास्ट वैल्यू आएगी। लास्ट वैल्यू का मतलब जो पिछली आउटपुट थी, अगर 0 थी तो 0 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रही होगी तो 1 रहेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देखो ट्रुथ टेबल आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, अभी मैं इसका एक लॉजिक भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आप कुछ काम कर पाएंगे, बिकॉज इसमें आपको फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन भी करनी पड़ती है अगर आपको याद हो, और आपको काउंटर डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये गेट्स के थ्रू ही करेंगे, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस। 0 0 मींस लास्ट इनपुट, लास्ट वैल्यू, सॉरी लास्ट आउटपुट जो आई थी। अगर 0 तो 0, 1 तो 1, 0 1 पे 1 सेट, 1 0 पे रीसेट, एंड 1 1 पे क्या है? Invalid. इनवैलिड स्टेट। ये क्लियर है सबको? 1 1 पे इनवैलिड कैसे आता है? Yes, sir. Because Q is not equal to Q naught. हाँ, अगर आप 1 1 दे देंगे और Q और Q बार सेम आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. नहीं है। अब इसका आपको क्या बनाना पड़ता है? एक आपको इसकी बनानी पड़ती है वेवफॉर्म। लेट अस डिजाइन दैट वेवफॉर्म। तो आई हैव अ क्लॉक सिग्नल, कुछ भी मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ी सी ऐसे। दिस इज माय क्लॉक, and then I will have a R value and I will have a S value. तो R value कुछ भी ले लेंगे and कुछ भी S value ले लेंगे। और यहां आएगी मेरी क्या? मेरी आउटपुट। तो पहले देखिए आप, अगर मैं इस क्लॉक से इसको नीचे लेके आऊं, डॉटेड से लेके आना है, डॉटेड से, तो इट इज 0 0, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, because you must be knowing this positive logic and negative logic. Are you clear with it everyone? Anyone? Yes, sir. Positive logic says 1 is high, 0 is low, and negative logic says the reverse, 0 is high, 1 is low. Okay, so we are going as per positive logic. तो 0 0, तो टेबल में 0 0 पे क्या आ रहा है? लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू मींस इफ इट इज 0, तो अगली क्लॉक तक, अगली क्लॉक को भी मैं नीचे लेके आऊंगा, और अगली क्लॉक क्या है? 1 1। तो 1 1 क्या है? फॉरबिडन स्टेट। तो फॉरबिडन में मैं इसको छोड़ सकता हूं, अगली क्लॉक लेके आऊंगा। तो R is 0, S is 1. Check in the truth table. R is 0, S is 1. तो it is set 1. 1 means high. तो ये हाई कब तक रहेगा? अगली क्लॉक तक। Now 1 0, 1 0 means 0. तो 0। तो इसी तरह नीचे गिराते रहना है, वैल्यू देखते रहना है और नीचे बनाते जाना है। मुश्किल है कुछ? Anyone? Is it easy?
Yes, sir. अब RS फ्लिप फ्लॉप की तरह ही हमारे ये उसने बनाया है जो हम देख रहे हैं। ओके ये उसने बनाया है स्क्रीन पे, और ये PDF तो आपके पास है ही है, राइट एवरीवन। और क्लॉक्ड में क्लॉक 1 रहनी चाहिए, ये तो हमें पता ही है, क्लॉक 1 रहेगी तभी सर्किट काम करेगा। ओके इसी तरह हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? डी का फ्लिप फ्लॉप का नाम है डिले। तो हम क्या करेंगे, दो जो इनपुट्स हैं, क्लॉक तो जाएगा ही जाएगा, पहली इनपुट को दूसरी इनपुट का नॉट गेट लगा के नीचे दे देंगे। तो अगर आप ऊपर 1 देंगे तो नीचे 0 जाएगा, अगर आप 0 देंगे तो नीचे 1 जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही इनपुट होगी डी। if you give 0 here it will give 1 here, if you give 1 here it will go 0 here। तो ये इसका फ्लिप फ्लॉप है। 0 देने पे 0, 1 देने पे 1। क्लॉक 0 देने पे तो वो काम ही नहीं करेगा ना, डिसेबल हो जाएगा डी, डोंट केयर। इसी तरह इफ यू सी ओके यस वेट यहाँ पे इसने डायग्राम बनाया नहीं, कहाँ गया? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए था। अच्छा वैसे तो डायग्राम देख के पता चल जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अभी डायग्राम देख रहे हैं साइड में? यस और नो? Yes, sir. पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में देखिए ये सिंपल क्लॉक जा रहा है, पर नेगेटिव एज में इसका नॉट जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. अब इसमें डिफरेंस ये है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग इज ट्रिगरिंग व्हेन वी गिव अ राइजिंग एज। जैसे ये देखो ऊपर राइजिंग एज दे रहे हैं, जैसे अगर मैं ये बनाऊं, मेरा क्लॉक ये हो तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगी, पर अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ये फॉलिंग एज दे रहा हूं उस केस में, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। Negative edge trigger. Yes, sir. और सिंबल्स देखने से ही पता चल जाता है फ्लिप फ्लॉप को, अगर सिंपल क्लॉक जा रही है तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, नॉट लग के जा रही है तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। अब इसमें हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप हमने देखा, तो इसी तरह हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप, अच्छा टी नहीं है यहाँ पे, डी और टी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, डी में नॉट लग के जाता है और टी में नॉट नहीं लगता, दोनों इनपुट सेम जाती है। तो इफ यू गिव 0 here it will go give 1 here, if you give 1 here it will go 0 here, but T में there's no not gate here, if you give 0 here it will go 0 here, if you give 1 here it will go 1 here, तो 0 0 और 1 1 दो स्टेट्स होंगी। ओके इसी तरह हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का है, ये अगेन दोनों दिखाया है। ये जेके फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक तो जा रहा है बट नॉट नहीं है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और राइट में आप देखिए तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। और दो सिग्नल हमारे पास और है, पीआर और क्लियर, प्रीसेट और क्लियर। क्लियर का मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको क्लियर कर दे, क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट है, राइट? जैसे आप पेन ड्राइव इरेज कर देते हैं तो क्लियर का सिंपल। और प्रीसेट का मतलब होता है इसको वापस 0 0 स्टेट पे लेके आना, इनिशियल स्टेट में लेके आना। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब जेके और एसआर जो आपने पहले पढ़ा उसमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जेके में 1 1 फॉरबिडन नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लास्ट स्टेट होता है। यानी पिछली स्टेट अगर 0 थी तो 1, अगर 1 थी तो 0। इज इट क्लियर? बट अब जैसे मैंने टी का बोला था आपको, दोनों सेम जाएंगी, नॉट गेट नहीं लगेगा, राइट एवरीवन? Everyone please respond. Am I audible? Yes, sir. तो जेके और आरएस में सिर्फ 1 1 स्टेट का डिफरेंस है। जेके और आरएस में सिर्फ 1 1 स्टेट का डिफरेंस है। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप। वो क्या है? उस प्रॉब्लम का नाम है रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है? बेसिकली जब आप जे और के को इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा, अब वो आउटपुट देने के बाद इतनी जल्दी वापस इनपुट पे चला जाएगा। देखिए क्या होता है, क्या होता है when there is a clock, तो उसकी वैल्यू देखिए, कोई भी मैं और वैल्यू लेता हूं, इसको रेज कर देते हैं।
अगर मैं एक क्लॉक लेता हूं तो उसकी आउटपुट के लिए या मेरी वैल्यू हाई रहनी चाहिए या मेरी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लो, एक क्लॉक पल्स के लिए, किसी भी इनपुट के लिए। बट जेके फ्लिप फ्लॉप की ये दिक्कत है, अगर आप देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, तो जब आप जे और के को इनपुट देंगे, ये इनपुट जाएगी एंड के पास, उसके बाद और के पास, और के पास जाने के बाद इतनी जल्दी वापस इनपुट पे आ जाएगी कि एक ही क्लॉक पल्स में वैल्यू एक बार चेंज होने की बजाय एक ही क्लॉक पल्स में मल्टीपल टाइम वैल्यू चेंज होगी। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। और ये क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आउटपुट इमीडिएटली वापस कहां जा रही है, इनपुट पे, Yes, sir. और आपकी फाइनल रिजल्टेंट वेवफॉर्म चेंज हो रहा है। ये इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। आप देख रहे हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका बाकी स्टेबल तो सेम ही रहेगा। कहां गया, ये देखो पॉजिटिव एज ट्रिगिंग और नेगेटिव एज ट्रिगिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, ये है मास्टर स्लेव जेके। आप देख रहे हैं कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर जेके, रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करने के लिए दोनों को जो क्लॉक जा रही है, यहां पे नॉट गेट लगा हुआ है, देख रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, तो sir. ये मेरा मास्टर फ्लिप फ्लॉप है और ये मेरा स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। जब आप इसको क्लॉक 1 देंगे तो मास्टर काम करेगा, राइट? Yes, sir. तो इस 1 का नॉट इसको क्या जाएगा, 0। तो उस केस में Zero. स्लेव काम नहीं करेगा। Yes, sir. तो जब आप अपनी क्लॉक चेंज करेंगे 0, तो इसको क्या जाएगा 1। तो इसकी जो आउटपुट है वो तब स्लेव एज ए इनपुट ले पाएगा। तो इससे हुआ क्या, इसमें मैंने डिले ऐड करी। नॉट गेट लगाने से क्या हुआ, क्योंकि क्लॉक चेंज, एक ही क्लॉक में मल्टीपल टाइम टॉगल हो रहा था मेरा सिग्नल। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन, कि 0 और 1 में रेस लगी है कि क्या आएगा। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं इसको 1 दूंगा तो मास्टर काम करेगा, स्लेव काम ही नहीं करेगा, वापस इनपुट वापस आउटपुट वापस इनपुट पे जाएगी नहीं, क्योंकि इसको मैंने 0 दे रखा है। तो जब मैं इसको 1 देने के बाद ये अपनी आउटपुट दे देगा तो मैं इसको 0 कर दूंगा, अब स्लेव काम करेगा। अब क्लॉक चेंज होने पे आपकी आउटपुट इनपुट पे जाएगी। तो इससे क्या ऐड हुआ, एक टाइम डिले ऐड हुआ, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन क्या हो गई, खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर अगर जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिटेल लिखना आया एग्जाम में तो हाँ, सर तो आप क्या क्या मास्टर करेंगे? स्लेव और ये दोनों लिखेंगे? देखिए, अगर आपको उसने पूछा है, अगर तो सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप कह रहा है तो आपको सिर्फ जेके ही लिखना चाहिए। अगर वो मास्टर स्लेव कह रहा है तो मास्टर स्लेव लिखना चाहिए। अदरवाइज वो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप, हाउ यू विल रिजॉल्व इट, तो फिर आपको मास्टर स्लेव लेके एक्सप्लेन करना है। अगर सर अकेला जेके लिखा तो हमने अकेला जी जेके जी जी जी। एक्सप्लेन उसमें आपने करना क्या क्या है, अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप पेपर में आए तो सबसे पहले आप जेके का डायग्राम बनाएंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप का एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, चाहे पॉजिटिव का नेगेटिव का दोनों बना दीजिए, और उसके बाद आप लिखेंगे उसका ट्रुथ टेबल, बस। और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद वेवफॉर्म जो हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, सर फिर इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना, जैसे exactly we can say that when j will be 0, k will be 0, the output will be last state means 0 means 0, 1 means 1, 0 1 देने पे 0, 1 0 देने पे 1, 1 1 में complement of last state, that means if 0, if it was previous 0, then now 1, if it was previous 1, now it will be 0. सर मतलब ट्रुथ टेबल को ही हमने एक्सप्लेन करना और कोई Exactly. एक्सप्लेनेशन नहीं करनी? exactly और उसके साथ वेवफॉर्म जो मैंने आपको बताया। ओके सर। ओके अच्छा जी, अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको एक्साइटेशन टेबल लिखने आते हैं? यस और नो? No, sir. नो सर। नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी इजी, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल के साथ ही आपको के मैप तो आते हैं? यस सर। यस यस Yes, sir. तो ये जेके का आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे ट्रुथ टेबल। तो जेके का ट्रुथ टेबल क्या है, जेके आउटपुट, तो 0 0 पे लास्ट स्टेट और 0 1 पे चेक, 0 1 पे 0, 0, 1 0 पे 1 1 1. एंड 1 1 पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ लास्ट स्टेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लास्ट स्टेट। तो इसका हम बनाएंगे एक्साइटेशन, कैसे बनाएंगे, इट इज वेरी इजी।
तो J K 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, देख रहे हैं, चारों इनपुट मैंने लिख लिए। अब 0 0 पे क्या होता है? प्लीज से Last लास्ट स्टेट। लास्ट स्टेट मींस अगर 0 था तो 0, 1 था तो 1। Qn previous output and next output Qn plus 1 suppose 0 0 पे क्लियर है? लास्ट स्टेट ना, लास्ट मतलब जो पीछे थी, अगर 0 थी तो 0, 1 थी तो 1। Yes, sir. नाउ 0 1 पे क्या आ रहा है? 0. 0। पिछली 0 थी तो भी 0, पिछली 1 थी तो भी 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. 1 0 पे क्या आ रहा है? 1. पिछली 0 थी तो भी 1, पिछली 1 थी तो भी 1। और 1 1 में क्या हो रहा है? Complement of last state. अगर 0 थी तो 1, अगर 1 थी तो 0। ये टेबल कैसे बना, क्लियर है? Yes, sir. अब मैं ट्रुथ टेबल को कर रहा हूं इरेज, क्योंकि जेके का एक्साइटेशन लिखने वाले हैं हम। जे के 0 0, चेक करो 0 0 कहां आ रहा है? एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. यानी किसके लिए, किसके लिए? यस और नो? Yes, sir. एक 0 0 यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो इसका सेम जो रह रहा है उसको ऐसे लिख लो, और जो चेंज हो रहा है उसको 5 लिख लो। सिमिलरली 0 1, 0 1 कहां कहां आ रहा है? एक यहां पे और एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। तो क्या आएगा? 1 5. Yes, sir. यस। नाउ 1 0, टेल मी 1 0, 1 0 की आउटपुट क्या आएगी? एक यहां और एक यहां। 1 0 5 1. 5 1 एग्जैक्टली। और 1 1 हाँ जी 1 1। 5 0. लो जी, एक्साइटेशन इज रेडी। Was it Yes. tough? No, sir. No, it is not tough at all. सर वो कौन सा स्टेप है? Q जो हमने 0 0 1 1 ये निकाला। वाला Yes, sir. आपने सुना नहीं जो मैंने बोल रहा था? 0 0 पे लास्ट स्टेट, 0 तो 0, 1 तो 1। Yes, sir. 0 1 पे आउटपुट आएगी 0। पिछली 0 थी तो भी 0, पिछली 1 थी तो भी 0। Yes, sir. Clear. अब क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रुथ टेबल कन्वर्ट हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने इंटरनेट से एक बड़ा ही अच्छा ट्यूटोरियल सर्च किया था और मुझे मिला था, तो उसको देखते हैं एक बार। शायद मैं पेन ड्राइव में डालना भूल गया, डोंट वरी। तो लेट अस प्लीज वेट। हाँ, आई शेयर स्क्रीन अगेन। I share the screen again, wait. Am I audible to all? Everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. Yes, sir. चलिए जी, मिल गया। Are you able to view my screen now? Everyone? Yes, sir.
तो ये एक वेबसाइट है circuittoday.com, इसमें बड़ा अच्छे से समझाया गया है। अब आप देखिए, ये वही बनाया जो हमने बनाया, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे भी 0, 0 पे 1, तो है ना, 1 पे भी 1, 0 पे 1 और 1 पे 0, जो भी बनाया था हमने पीछे, अगर आपको याद हो। यस और नो? Yes, sir. अब आपको यहां पे एस और आर के एक्साइटेशन की वैल्यूज डालनी है। अब एस आर का एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कैसे? पर सर हमने उसमें जेके में 0 और 5 लिया था, अब पर यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम किस फ्लो को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? एस आर को जेके। जेके JK में। तो Yes. पहले जेके का वो एक्साइटेशन लिख लेंगे जो हमने बनाया था। ये क्लियर है या नहीं? ये वही है जो भी बनाया था, 0 0 पे प्रीवियस स्टेट, 0 पे 0, 1 पे 1, हाँ या ना? Yes, sir. 0 1 देने पे आउटपुट 0 ही आएगी, चाहे 0 थी तो भी 0, 1 थी तो भी 0। याद है या नहीं? 1 0 देने पे आउटपुट 1 ही आएगी, चाहे 0 थी तो भी 1, चाहे 1 थी तो भी 1। और 1 1 देने पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, 0 पे 1, 1 पे 0। मुश्किल है? अभी तो बनाया ये थोड़ी देर पहले। Yes, sir. एवरीवन? हाँ जी, समझ नहीं आया क्या? Sir, clear है. एवरीवन? Yes, sir. चलें आगे। तो इतना पोर्शन आपको क्लियर है? ये जेके और क्यूपी प्लस 1 तक, ये तो अभी हमने बनाया पीछे। Yes, sir. इसमें सिर्फ हमको एसआर की वैल्यू डालनी है, क्योंकि हम करके आ रहे हैं एसआर को जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जेके मेरा क्या है? डेस्टिनेशन जिसमें बनाना है, और एसआर मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि एसआर को जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले जेके की वैल्यूज लिखेंगे और एसआर का एक्साइटेशन फिल कर देंगे किसमें? जेके की पोजीशंस पे। Yes, sir. ये टेबल क्लियर है कि नहीं आपको? ये वाला, इतना वाला बताइए Yes, प्लीज। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि 0 0 जो है एसआर में कहां आता है? वो 0 5 पे आता है एक्साइटेशन। जैसे हमने जेके का लिखा वैसे एसआर का भी लिख सकते हैं। एसआर का कैसे होगा बताइए? एसआर में सिर्फ एक चेंज होती है जेके के साथ, अगर आपको याद हो, 1 1 कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। Yes, sir. अगर 0 5 की जगह तो अब 0 0 का क्या होगा? 0 5। Yes, sir. और 0 1 का क्या होगा? क्योंकि 0 1 एक स्टेट यहां भी आ रही थी, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो इस केस में 0 1 मेरा एक ही जगह आ रहा है, कहां पे? 1 0 पे। 1 0. और 1 0 कहां आ रहा है? 1 0 वो भी एक में ही आ रहा है, तो उसकी इनपुट क्या है? यस और नो? और 1 1 में क्या Yes, आएगा? sir. 1 1 तो है ही नहीं ना मेरे पास। Yes, sir. 1 1 तो फॉरबिडन है इसमें, पर इसमें 1 1 में मैं ये ले सकता हूं, 1 1 यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है 1 1, तो उसके लिए 5 0। यस और नो? बताइए भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये देखिए कि आप एसआर को जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जेके की वैल्यूज ऑलरेडी हैं, एसआर का एक्साइटेशन हमने बना लिया, जैसे 0 0 का 1 5 0 5, 1 1 का 5 0 स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, 0 1 का 1 0, ये देखिए ये बनाया है सामने आपके। अब मैच करिए इसके साथ। मैच करिए भाई, Yes, करता है sir. मैच Yes, sir. एवरीवन? 0 Yes, sir. 0 पे 0 5, 1 1 पे 5 0, 0 0 पे 0 5, 1 0 पे 0 1, 0 1 पे 1 0, बन तो रहा है? ये टेबल कैसे बना, क्लियर है या नहीं? Yes, sir.
भाई रिस्पॉन्स बहुत ढीला है, समझ नहीं आया क्या? क्लियर है सर? क्लियर है सबको? अब Yes, कुछ sir. नहीं करना है, अब मुझे एस और आर का के मैप बनाना है, जिसमें जे, के और क्यू, पी, इसको मैं पोजीशन लूंगा, 0 का कोड, 1 का कोड, 2 का कोड, 3 का कोड, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। तो इसमें 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, जिसमें पहले एस की वैल्यूज भरूंगा, फिर आर की वैल्यूज भरूंगा और 2 एक्सप्रेशन जनरेट होंगे। जैसे एस का हो रहा है जे बार क्यू पी, ओके, और के का क्या हो रहा है? क्यू पी, तो ये मेरा QP. के है, तो के का हो रहा है क्यू पी, KQ. सॉरी आर का हो रहा है के क्यू पी, आर का हो रहा है के क्यू पी। तो आर को मैंने क्या देना है? के और क्यू पी का एंड। सिमिलरली एस को क्या देना है? जे बार और क्यू पी, एस को देना है जे बार, यहां से गलती करी है शायद, जे बार को यहां नॉट बबल करना चाहिए था। यस और नो? Yes, sir. एक्सप्रेशन गलत तो नहीं बनाया इसने कहीं? जे बार और जे, हाँ जे है, ये जे है, ये गलत लिखा है इसने, जे क्यू पी आएगा यहाँ पे, तो इसलिए सर्किट ठीक है। जे और एक मिनट प्रॉब्लम है यहाँ पे, जे क्यू पी बार, ये इसने एक्सप्रेशन में गलती, ये होना चाहिए जे क्यू पी बार, और आप देखिए जे जा रहा है और उधर से क्यू पी बार जा रहा है एंड होने के लिए, Yes, sir. ओके। ये Yes, था sir. एसआर से जेके, इसी तरह जेके से एसआर। तो पहले आप एसआर की वैल्यू भरेंगे, पर एसआर में आपको होता है 1 1 इनवैलिड होता है, तो आप ये पहले ही लिख लेंगे। इधर जेके का एक्साइटेशन है जो हमने अभी बनाया, 0 0 का 0 5 1 1 1 का 5 0, अब देख लीजिए स्क्रीन पे बना हुआ है आपके, Yes, sir. बहुत इजी है ये ट्यूटोरियल मुझे बड़ा अच्छा लगा, लाइक इजी लैंग्वेज में थोड़ा बना हुआ है, circuitoday.com। अगर आप बोलेंगे मैंने इसका पीडीएफ बनाया तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इज इट इजी? Yes, sir. एक ही आवाज आ रही है। एवरीवन, Yes, sir. how we made excitation table, is it clear? Yes, sir. Now let me show you Yes, something. sir. Now let me show you something. See this excitation table, अगर आप excitation table सही से नहीं समझते हैं तो आप ना तो के मैप कन्वर्जन कर पाएंगे और ना ही, ये ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कौन सा टॉपिक है? काउंटर डिजाइनिंग, और काउंटर डिजाइनिंग में भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? अगेन एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल अगर नहीं हुआ तो ना तो आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट कर पाएंगे, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है काउंटर डिजाइनिंग। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कंटेंट आई विल बी टेलिंग यू हाउ वी कैन डिजाइन काउंटर्स। बहुत इजी है ये, ओके? प्लीज रिस्पॉन्ड। आज हमने 3 Yes, चीजें sir. पढ़ी। पहले ऊप्स में टेम्पलेट पढ़ा, देन कोल का वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा, और डीसीएलडी का फ्लिप फ्लॉप्स। आई होप थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा इससे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए, sir. ठीक है जी, आज यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। जी जी जी, कुछ बोल रहे कोई? सर GCC कंपाइलर का कब तक? हाँ, जीसीसी कंपाइलर का एक ना अलग से एक लेक्चर प्लान कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर लेक्चर होगा जिसमें Yes, sir. आपको ये शिफ्ट बताया जाएगा कि आपको टर्बो से जीसीसी कैसे शिफ्ट करना है, ओके? एंड उसके बाद कोई भी टर्बो यूज नहीं करेगा। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए ठीक है जी,